गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी। एक स्टडी तक इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को।
ठीक है, डन। हाउ मेनी ऑफ यू रिटर्न? यस रितु। Good morning, sir. Sir, I won't be able to switch on my camera. I just woke up, so ओके ओके, नो इशू नो इशू। yes. Sir, I started the question with the importance of emotional intelligence, that it acts as a compass in guiding the behavior and conduct of civil servants in performance of their duties. Then I mentioned through a diagram what are the qualities of emotionally intelligent civil servants. Then some keywords here, that balanced approach, self-awareness, Goldman models keywords I have mentioned here. Then जी। I have used for 2 3 lines that the keywords in the mentioned in the question, the role of EI in civil servants, that they help in cultivating meaningful relations. Giving example of IAS officer Sakshi Sahani, who met the people during floods in Amritsar. Then cooperation at multiple levels within department as well as with public. General example, that how civil servants use dialogue to calm the protest instead of using force. Third, हम्म। Third, positive change through self-motivation. Example of IAS officer Prashant Nair, Operation Suleimani. Then the question that how we can cultivate EI. I have divided it into two parts: personal level and organizational level. In personal level, at family, where balancing work and professional life through regular interactions with family, focusing on values, value-based education, practicing yoga, meditation, such techniques can also help in controlling emotions. Then at organizational level, code of ethics, sensitivity training, interactions with the public, and initiatives like Bharat Darshan, where the civil servants are exposed to different sections of society and different parts of our country to cultivate empathy. So I have mentioned these points, and in conclusion, I have mentioned about Mission Karm Yogi, where the government is focusing on creating proactive and resilient bureaucracy. Their emotionally intelligent civil servants are needed in this regard. बढ़िया। सो आपने जहां पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्वेश्चन, उसमें कितने कितने पॉइंट्स मेंशन किया आपने? Sir, I have mentioned personal level, may I have mentioned 3 points, and हम्म। organizational level, I have mentioned 5 points, sir. ओके ओके, ठीक है रितु। Okay. यस निश्चित। फिर मैंने सिंपल स्टार्ट किया है, मतलब गीता का रेफरेंस दिया है, आज गीता रिमाइंड्स अस ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस क्रिएटिंग बैलेंस्ड एक्शंस, thus EI strengthens humane administration and deepens public trust capital in governance. फिर मैंने डायरेक्टली मतलब डिमांड पे स्विच किया है, वेज टू इनकलकेट इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें सर मैंने पहली सब हेडिंग दी है स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग एट लबासना एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूट्स। पहला पॉइंट है इसके अंदर बिल्ड इमोशनल लिटरेसी थ्रू रोल प्लेज एंड सिमुलेशंस। सेकेंड पॉइंट है यूज बिहेवियरल सिमुलेशंस टू टीच रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन, एग्जाम्पल फ्लड कैंप सिमुलेशंस। थर्ड पॉइंट लिखा है इंटीग्रेट माइंडफुलनेस मॉड्यूल्स, एग्जाम्पल 10 मिनट माइंडफुलनेस सर्कल। फिर सर मैंने दूसरी सब हेडिंग दी है फील्ड बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर लिखा है विलेज इमर्शन ठीक है। प्रोग्राम टू कल्टिवेट एम्पैथी एंड कंपैशन, एग्जाम्पल एसएचजी मीटिंग ऑब्जर्वेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है शैडोइंग फील्ड ऑफिसर्स रीइंफोर्सेस कंपैशन विद ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ट्रेनी मॉड्यूल विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है मैंने लिसनिंग सर्कल्स विद सिटीजन्स इनकलकेट एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो सर यहाँ पर मतलब मेरे को याद समझ में नहीं आता, जन संवाद क्लस्टर विजिट लिख दिया मैंने। फिर सर थर्ड सब हेडिंग दी है अदर्स करके दिया है, इसमें जनरल लिखा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स स्ट्रेंथन सेल्फ रेगुलेशन, एग्जाम्पल डेली डायरी राइटिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमेन एक्शंस, यहाँ पर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट सेवा स्टार मेडल। फिर मैंने कंक्लूड किया है
EI turns administration into saver-driven, citizen-centric, anticipatory governance. सर बस इतने ठीक है पे एंड कर ठीक है दिया। ठीक है। वो लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो तीन पॉइंट्स आपने बनाए जो अदर वाले में है, हाँ तो अदर वाला देने का कोई सिनेरियो नहीं बनाते हम लोग यहाँ पर। उसको या तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सीक्वेंस में चलने दो पूरे पॉइंट्स को। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आगे चल के, ठीक है, दो पार्ट में आप कर सकते हो, उसको फील्ड का बना सकते हो या पर्सनल वाला जैसे रिटर्न होता है वैसे बना सकते हो। लेकिन अगर वो भी नहीं बन रहा तो एक ही उसमें आप 7 to 8 पॉइंट्स मेंशन करो और उसको फिनिश कर दो, क्योंकि वो डायरेक्टली एक ही पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे हम उसके सब पार्ट्स अंदर अंदर खुद से ही बना रहे हैं वहां पर। उसने डायरेक्टली यस वहां सर। पर हाँ, उसने डायरेक्टली पूछ लिया इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी इनकैलकुलेटेड इन सिविल सर्विसेज। तो हम लोगों को उसी के बेसिस पे सारे 8 से 9 पॉइंट लिखने हैं। तो या तो आप अपने इनसाइड में जो बना रहे हो तो 2 पॉइंट बना दो, वहां पर दो हेडिंग बना दो, अंदर सब हेडिंग्स जो होती है दो बना दो। इसके अलावा कोई और ज्यादा मत बनाओ। जैसे अदर बनाया तो उसमें फिर वो सेम ही निकल के आएंगी चीजें। ठीक है, तो दो ही हेडिंग बनाना यस है वहां सर। पर। ओके सर। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी थोड़ा इसको डिस्कशन देखते हैं। जिसने हैंड रेज किया तो उसको नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा इन्होंने, एक कॉन्टेक्स्ट दिया था आप लोगों को। सिविल Civil servants who embody emotional intelligence exhibit a profound understanding of the human aspect of governance, enabling them to cultivate meaningful relationships, foster cooperation, and drive positive change. Examine ways in which emotional intelligence can be included in the civil services. बहुत ही बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने। तो सबसे पहले आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन जिसमें हम लोग एबिलिटी टू रियलाइज, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट एंड यूटिलाइज इमोशंस। देयर आर 4 कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। आप सिंपल इतना भी लिखोगे डेफिनेशन में तो भी चलेगा, छोटा डेफिनेशन बनाओगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, रेगुलेट एंड यूटिलाइज इमोशंस बोथ ऑन वन एंड दोज ऑफ अदर्स, दोनों के, टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है। इसके बाद में फॉर सिविल सर्वेंट हैंडलिंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड क्राइसिस सिचुएशंस, तो उसमें कनेक्ट किया थोड़ा सिविल सर्विसेज का रोल भी। देन एआई बिकम्स अ कोर कंपोनेंट ऑफ एथिकल कंपिटेंस, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पांस, गवर्नेंस। ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस कनेक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन का जो डिमांड होता है इंट्रोडक्शन में उसको कनेक्ट जरूर किया करो। जैसे यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स था तो उसके साथ में कनेक्ट किया गया, या फिर आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते थे यहाँ पर। नहीं तो जनरली हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एथिक्स के अंदर। फिर एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है कि भाई कैसे एआई है वो सिविल सर्विस के अंदर कैसे होते हैं। तो वहां पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, फील्ड एक्सपोजर, इंस्टीट्यूशनल कल्चर, ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, सिमुलेशन ड्रिल्स, वैल्यू एडुकेशन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल फीडबैक। ठीक है, ये एक बना सकते हो आप ऐसा, क्योंकि हम लोग आगे चल के इन्हीं को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो या तो इसको बना सकते हो, या फिर जैसे सिंपल एआई का एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। लेकिन यहाँ पर कायदे से जो चलेगा वो ये वाला डायग्राम चलेगा। ठीक है। इसके बाद एआई कैन बी इंक्लूडेड इन सिविल सर्विसेज। अब जैसे फर्स्ट में बिहेवियरल ट्रेनिंग इन द सिविल सर्विसेज एकेडमिक्स। ठीक है, सबसे पहले एआई मॉड्यूल्स लाइक फाउंडेशन कोर्स जो होता है फेज 1। फिर एमसीडी प्रोग्राम फोकस ऑन लाइक किस किस चीज पे फोकस करते हैं लोग, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पर लबासना में ह्यूमन इंटरेक्शन लैब्स चलती है वहां पर। ठीक है, ट्रेन प्रोविजनर्स टू एनालाइज इमोशनल ट्रिगर्स इन गवर्नेंस। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स आप लोग अपने बनाओगे। ठीक है, किसने ऐसा एग्जांपल लिखा था या खाली लबासना लिख के ही छोड़ दिया था? बताओ। तब मैंने आरंभ इनिशिएटिव लिखा था। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट 360 डिग्री फीडबैक एंड बिहेवियरल असेसमेंट्स। वहां पर ट्रेडिंग था, यहाँ पर फीडबैक एंड बिहेवियरल असेसमेंट्स है। उसमें मैंने मेंशन किया है लाइक मल्टी सोर्स फीडबैक लाइक सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स, रीजंस टू एनहांस सेल्फ अवेयरनेस। A cornerstone of AI identifies gaps of courtesy, पेशेंस एंड टीम वर्क। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर डीओपीटी, क्योंकि इन पे जो रिव्यू करता है वो डीओपीटी करता है। डीओपीटी 360 डिग्री रिव्यू
फॉर सीनियर ऑफिसर्स इन 2023 नाउ एंटर्स बिहेवियरल इंडिकेटर्स। तो ये लेटेस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन एआई इन सिविल सर्विसेज। ठीक है। देन मेंटरशिप एंड पीयर लर्निंग, अटैचिंग यंग ऑफिसर्स टू सीनियर मेंटर्स बिल्ड्स एआई थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बेंडोरा थ्योरी। ठीक है। इसके बाद एक इसमें बताया गया है कि काउंटनेस ड्यूरिंग क्राइसिस, रिस्पेक्टफुल पब्लिक इंटरेक्शन एंड एथिकल। अभी एक मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ था इन 2023 मणिपुर क्राइसिस, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स पर्सनली गाइडेड जूनियर ऑफिसर्स इन इमोशनली सेंसिटिव फील्ड ऑपरेशंस। ठीक है। देन इम्प्रेसिव फील्ड एक्सपोजर एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है। उसमें कैसे ग्रो करते हैं, इसमें ऑब्जर्व हार्डशिप को करते हैं, लाइक विलेज से, जैसे अभी निशित ने बताया था, इंटरेक्शन विद वनरेबल ग्रुप्स एंड ग्रीवेंसेस लीडरशिप कैंप्स। ठीक है। एक एग्जांपल दिया है उत्तराखंड 2024 डीएम विद कम्युनिटी। आपके ये वाले एग्जांपल जाएंगे इसमें, क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हो तो हम लोग जैसे हमारे कोई क्लासेस चल रही है, कोई हमने कुछ उसमें इनिशिएटिव लेके आए हैं, तो वो चीज हम लोग मेंशन करेंगे। तो उत्तराखंड 2024 डीएम विद कम्युनिटी प्रोग्राम रिक्वायर्स ऑफिसर्स टू स्पेंड फुल डेज विद विलेजर्स। ठीक है। देन माइंडफुलनेस योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट रूट्स, यहाँ पर हम लोग बेसिकली डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग थ्रू पॉज टेक्निक्स। ठीक है। एक एग्जांपल दिया है केरला पुलिस माइंडफुल कॉप इनिशिएटिव रिड्यूस स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज। क्यों? क्योंकि देयर आर सम इंसिडेंट जहां पर लोगों ने खुद को सुसाइड किया है प्रेशर में आके, तो उसके बेसिस पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया था वहां पर। स्नेरियो बेस्ड सिमुलेशंस एंड क्राइसिस ड्रिल्स, जिसमें हम राइट मैनेजमेंट सिमुलेशन, नेगोशिएशन, रोल प्लेस, डिजास्टर कम्युनिकेशन ड्रिल्स की बात करते हैं। साथ में एक एग्जांपल है एनडीए 2024 क्राइसिस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, ये लोग देते हैं। इंक्लूड्स मॉड्यूल्स ऑन द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के ऊपर भी बात करते हैं। देन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, जिसमें कंपैशन, एम्पैथी, डिग्निटी, टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, ये 5 वर्ड जो रहेंगे ना, ये आपका साथ पूरे एथिक्स में नहीं छोड़ेंगे। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगे ये। ठीक है। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर तमिलनाडु का 2024 में, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पैथी मॉड्यूल इन लोगों ने स्टार्ट किया था, टीचेस ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज। तो इस टाइप का आप एक यूज कर सकते हो। ठीक है। देन building a supportive organizational culture, zero tolerance for bullying, rewarding emotional balanced officers, collaborative decision making। ठीक है। रेगुलर काउंसलिंग एंड इमोशनल वेलबींग सपोर्ट, जिसमें कुछ पीरियडिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, जिससे ऑफिसर्स डील करेंगे, लाइक बर्नआउट होता है, ट्रॉमा होता है, कुछ इमोशनल फैटिक और उन लोगों को। तो ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, इंट्रोड्यूस काउंसलिंग डेस्क स्टार्ट किया इन लोगों ने फॉर फील्ड लेवल ऑफिसर्स वर्किंग इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड इमोशनल जर्नलिंग, इससे डायरी, जैसे अभी निशित का पॉइंट था ये वाला, ऑफिसर्स टू ट्रैक इमोशनल रिस्पॉन्सेज, इंप्रूव बिहेवियरल मैच्योरिटी। ठीक है। कंक्लूजन में फिर यही, एआई इज नॉट इनेट, इट्स ट्रेनेबल, मेजरेबल एंड एसेंशियल फॉर अ सिविल सर्वेंट सक्सेस। फिर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल कल्चर एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। लास्ट में अगर कुछ उसको, लाइक ऑफिसर फोस्टर ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन, स्टूडेंट फोकस गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंक्लूजन रितु का भी अच्छा था, जो सबसे पहले जिन्होंने बताया था उनका भी अच्छा है। ठीक है। अब कुछ देखते हैं टॉपर्स ने क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया है यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन बच्चे ने, रीजनिंग विद इमोशंस एंड ब्रिंगिंग इमोशंस इनटू रीजनिंग, द सोशली डिजायरेबल कंडक्ट, गॉलमैन का इन्होंने मेंशन किया है। आप भी ऐसा कुछ डेफिनेशन बना के और मेंशन कर सकते हो। देन इन्होंने एक सिंपल, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था सिंपल लास्ट में, वो सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इमोशनल सोशल मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इसको हम बना सकते हैं एआई के डायग्राम को। लेकिन जब मेरे क्वेश्चन में मेंशन किया है सिविल सर्वेंट्स का, तो मैं एआई इन सिविल सर्वेंट्स के बारे में ही मेंशन करूंगा डायग्राम। ठीक है। अगर वो खाली इसके बेसिस पे बात करता तो हम बना सकते थे इसको। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक डेवलप एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स पुअर, लाइक आईएएस लक्ष्मी प्रिया का एक एग्जांपल दिया है, मिशन संपूर्णा। संपूर्णा क्या था कि असम के अंदर एक ये डिस्ट्रिक्ट था जिसमें हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन के बेसिस पे कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन चोजन फॉर द पीएम अवार्ड के बारे में बात किया था। तो एक एग्जांपल दे सकते हैं ऐसा कुछ। फिर रोल क्या है इनके सिविल सर्विसेज के, इन्होंने रोल इन सिविल सर्विस में मेंशन किया है। लाइक यहाँ पर एक दिव्या का एग्जांपल दिया है, दिव्या रंजन का, जिसमें अपने गॉन्डी पीपल के लिए उन्होंने कुछ किया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम किया था।
ठीक है, जिसमें एएसआई ने अपने आप को लाइक शूट कर लिया था इसमें, तभी वो आया था। वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर ये एक जामतारा जामतारा इसका डीएमके एल्डरली क्लब्स इन्होंने स्टार्ट किए थे यहाँ पर। फिर वेज टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, एक बच्चे ने क्या लिखा है यहाँ पर, अब एथिकल ट्रेनिंग यूजिंग योगा विपासना, ठीक है। अब शिक्षित ये के बारे में मेंशन किया इन लोगों ने। मेंटरिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो मैंने ऑलरेडी पॉइंट मेंशन किया है। इनर इंजीनियरिंग बाय द रोल मॉडलिंग रीडिंग, लाइक केसली बाय अजीत डोवाल इन ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये पॉइंट एक अच्छा है जिसको आप यूज कर सकते हो, और ये अभी तक चल रहा है हमारा, ठीक है। ways in which emotional intelligence can be included, अभी एक इसने role play and role modeling, sensitization and training, mentoring and civil servants, किरण अग्रवाल का एग्जाम कॉमेटिक एग्जांपल दिया, भारत दर्शन ऑलरेडी मेंशन किया था। फिर ये टाक बाई ऑफिसर्स। तो इसमें आप बेसिकली जो बेसिक आप लोगों ने अभी तक देखा इस प्रिपरेशन के अंदर, अपने प्रिपरेशन के अंदर, कि आप लोग ट्रेनिंग के अंदर क्या करने वाले हो, तो वहीं से कनेक्ट करके ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। like field visits to increase social and self awareness, village visits भारत दर्शन के अंदर, गांधीयन परफेक्टेड सत्याग्रह नॉन वायलेंस थ्रू प्रैक्टिसेस, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने मेंशन किया है। फिर एक ईआई स्किल के बारे में मेंशन किया है, कॉफी रन के बारे में, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने इन्होंने एक्सपोजर ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में मेंशन किया था। अब ट्रेनिंग आई गॉट और मिशन कर्मयोग, ठीक है। तो ये कुछ बनाए गए हैं। एक पॉइंट यहाँ पर कुछ किसी ने मेंशन किया था, हाँ, इमोशनल लिटरेसी के बाद में होल ऑफ द इमोशन, देन डेमोक्राइजेशन ऑफ द वर्क कल्चर अलाउइंग सिविल सर्वेंट टू एक्सप्रेस देयर व्यू, डबल लूप लर्निंग, ठीक है। एक ये पॉइंट अच्छा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। अब होता क्या है, एक सिंगल लूप लर्निंग होता है, एक डबल लूप लर्निंग होता है, ठीक है। अजम्पशंस, व्हाई वी डू व्हेन व्हाट वी डू, ये गया स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स, व्हाट वी डू एंड रिजल्ट्स में व्हाट वी गेट। तो जो व्हाट वी गेट है वो क्या लिखा है भाई, सिंगल लूप लर्निंग लिखा है। द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ लर्निंग इज जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूविंग द सिस्टम एज इट एग्जिस्ट। लेकिन डबल लूप जो लर्निंग होता है उसमें क्या होता है, मोर देन जस्ट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग क्वेश्चंस द अंडरलाइंग assumptions, values and beliefs behind what we do, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा लगा मेरे को, इसको आप मेंशन कर सकते हो। देन दे हैव गिवन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में इन्होंने शील परम भूषणम, ठीक है, किसने यूज किया था ये अपने आंसर्स में, मोटो ऑफ लवासना, किसने यूज किया? देन इसके बाद पीपल का एक इन्होंने मेंशन किया था, ये तो जस्ट बेसिक अलग है लेकिन ये ठीक लगा थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी एक लाइन में इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जितने पॉइंट्स हैं, सुपर मीट कोर, ये कीवर्ड्स हैं। अगर इफ आई टॉक अबाउट ऐसे सिमुलेशंस, जो मैंने पॉइंट में, ये मेरे पॉइंट में जो मैंने मेंशन कर रखा है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। उसी का एक कीवर्ड है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स आता है तो आप ये वर्ड याद कर लो, सुपर मीट कोर। अभी इसको मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें कीवर्ड है जिसपे आप पूरा याद कर सकते हो। फर्स्ट आता है सिमुलेशन वाला, तो सिमुलेशन एंड सिनेरियो ड्रिल्स, या सिमुलेशन एंड सिनेरियो ड्रिल्स, आप नोट डाउन कर लेना भाई इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रॉयट के बारे में होता है, रॉयट सिमुलेशन एंड क्राइसिस रोल प्ले। फिर अपना एग्जाम्पल हमारा जो रहेगा, अभी मैंने जो इसमें बताया था सिमुलेशन वाले में, ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, एनडीएमए का एग्जाम्पल दिया था। तो एग्जाम्पल आप यहाँ से उठाओगे, मैं सिर्फ आपको कीवर्ड कीवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर आया यू, तो यू में अंडरस्टैंडिंग थ्रू फील्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसमें विलेज स्टे की बात किया था हम लोगों ने, या कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की थी। इसको नोट डाउन करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिखता हुआ चलता हूँ। इसके बाद में पी, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग की बात की थी, जिसमें वेलबींग डेस्क की हमने जिक्र किया था, जम्मू कश्मीर वाला,
ठीक है, या बर्न आउट केयर। अगर वो भी नहीं लिखोगे और 2 एग्जांपल ये भी दे दोगे तो भी चल जाएगा आपका अच्छे से काम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ई आया एथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड एडुकेशन। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था पॉइंट, जिसमें एम्पैथी, डिग्निटी एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो आप लोग इसको? यस सर। देख लेना इसको ना। Yes, sir. इसके बाद में आर आपका आएगा, जिसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की बात की थी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें क्या आ गया, जर्नलिंग आ गया रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में, जर्नलिंग। ठीक है, और सेल्फ रिव्यू। मैं अपनी प्रिपरेशन में ऐसे याद करता था चीजों को, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग याद करो इन चीजों से ना। Sir, can देन you please repeat the R once again? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, जिसमें जर्नलिंग एंड सेल्फ रिव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुपर मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब मेरा आ रहा है मीट यहाँ पर। ठीक है, MWT। सो पहले मीट में माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुल एंड मेडिटेशन लाइक योगा, ब्रीथिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन, ER। देन फर्स्ट ही education in behavioral changes, behavior training, सॉरी। ठीक है, जिसमें आपका फाउंडेशन कोर्स, जिसमें फेज 1 में आपको यही चीजें सिखाई जाती है वहां पर, कम्युनिकेशन एंड एंगर कंट्रोल। देन द सेकंड ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस एवोल्यूशन वाया 360 डिग्री फीडबैक, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और बिहेवियरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। लास्ट टी आया टीम लर्निंग एंड मेंटरशिप, observational learning from seniors, observational learning from seniors। ठीक है, फिर आता है मेरे पास में कोर, सी में कल्चर ऑफ सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जिसमें नो बुलिंग, टीम वर्क और रिवॉर्ड्स है यहाँ पर। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स इन EI, जिसमें बिहेवियर इंडिकेटर्स अप्रेजल की बात करते हैं। आर फॉर रियल टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट, जिसमें मैं NDMA का एग्जांपल दूंगा और यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आ जाएगा। फर्स्ट एड, ठीक है। सर ये रियल टाइम के बाद क्या तो लिखा है इसको आपने? अगर एक लाइन में लिखे, क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में लिखे तो हेडिंग में सिविल सर्वेंट्स नीड सुपर मीट कोर टू ग्रो इमोशनल इंटेलिजेंस।
ये लाइन याद रखनी है भाई। सिविल सर्वेंट्स नीड सुपर मीट कोड टू ग्रो, ये याद होगी सबको। ठीक है, डन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेम, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन पॉइंट ऑलरेडी इस टाइप के ही आएंगे इसमें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस may not be singularly associated with emotions or intelligence. It can also include a broad range of personality characteristics that might predict success in professional and everyday life. ठीक है, अगेन आई गिव 9 to 10 minutes, इसको स्टार्ट करो।
भी है आपका क्वेश्चन? अभी पहले दोनों प्रगति बताएंगे। अभी क्या क्या लिखा इन लोगों ने, बताइए। सर इसमें स्टार्ट तो नॉर्मली किया है डेफिनेशन से ही कि इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ द अदर्स। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो पहली लाइन दी है उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली अबाउट द इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें फ्लो चार्ट में इमोशंस, इंटेलिजेंस, सॉल्यूशन, रिस्पॉन्स, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इसका फ्लो चार्ट बनाया है। फिर जो इसकी सेकेंड लाइन है कि दैट इट माइट प्रेडिक्ट सक्सेस इन प्रोफेशनल एंड एवरीडे लाइफ, इसमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं like what is the need for emotional intelligence। तो पहला पॉइंट है रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस फ्लेक्सिबली। तो इसमें एग्जांपल दिया है पंजाब फ्लड्स के टाइम पे अमृतसर डीसी का जो भी प्रोग्राम चला था उसका। फिर दूसरा है बिल्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द ट्रस्ट, इसमें कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का एग्जांपल दिया है। फिर तीसरा पॉइंट है डेवलपिंग ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंसी एंड द लीडरशिप क्वालिटीज टू मोटिवेट पीपल फॉर द पॉजिटिव वर्क, इसमें टीना डाबी का एग्जांपल दिया है फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम द पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। फिर फिफ्थ पॉइंट है हेल्प देम कोप अप विद द प्रोफेशनल स्ट्रेस एंड फोकस मोर ऑन देयर ड्यूटी फॉर द प्रोफेशनल सक्सेस। और इसके बाद एक चार्ट टाइप का बनाया है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस वैल्यूज लीड टू द प्रोफेशनल सक्सेस। और फिर ओवरऑल इसको कंक्लूड करने के लिए बनाया है कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एंड इट विल हेल्प देमसेल्व्स एज वेल एज द अदर पर्सन। और फिर इसको पूरे को ही ब्लॉक करके और एक एरो से दिखा दिया है दैट इट विल प्रोड्यूस मोर इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल इन द सोसाइटी। और उसके बाद कंक्लूड किया है एरिस्टोटल के कोट से दैट एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, but to be angry with the right person at the right time and for the right purpose, it is not easy. So emotional intelligence brings out the positive and it reforms the negative emotions of the person. बढ़िया। अब सेकंड प्रगति। तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया है नॉर्मली डेफिनेशन से कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इट्स ओन इमोशन। और सर उसके बाद मैंने वेन डायग्राम बनाया है जहाँ पे मैंने एक साइड पे रैशनल माइंड दिखाया है, एक साइड पे इमोशनल माइंड दिखाया है और सेंटर में वाइस माइंड। और वहाँ पे इमोशनल माइंड के साइड पे मैंने उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं जैसे एंजाइटी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, फियर। और रैशनल माइंड के साइड पे फैक्ट्स, डेटा, प्रोसीजर बेस्ड, वेल लर्नड अबाउट द सब्जेक्ट, ऐसे करके मतलब रैशनल और इमोशनल माइंड को फ्यूज करके एंड देन वाइस माइंड। तो वहाँ पे फिर मैंने इसको डायरेक्टली जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने डेनियल गोलमैन वाला ही एट्रीब्यूट को मैंने लेके और डिफाइन करके एग्जांपल्स उसमें डाले हैं। तो पहले सेल्फ अवेयरनेस, उसमें मैंने MS धोनी का एग्जांपल दिया है जहाँ पे स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इंडियाज कैप्टनसी व्हेन ही बिलीव्ड ही वाज अनफिट फॉर इट, वो किया है। सेकंड पे सेल्फ रेगुलेशन पे माइंडफुलनेस, वहाँ पे मैंने टीना डाबी का एग्जांपल, मैम का एग्जांपल दिया है, इनिशिएटिव ऑन मेंटल हेल्थ टू टैकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। Then social skills, interaction with public to address their grievances, जहाँ पे मैंने PM मोदी का एग्जांपल दिया है, consoling ISRO chairperson after failure of Chandrayaan mission। देन मोटिवेशन में मैंने लिखा है टू लीड एंड इन्वेंट वेज डिस्पाइट फेलियर, इसमें मैंने IS आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का एग्जांपल दिया है जहाँ पे है वही जो रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी। देन एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज ऑफ अनदर, तो वहाँ पे मैंने वही IS संदीप नंदूरी का एग्जांपल दिया है कैफे एबल का। तो फिर मैंने इसको कंक्लूड किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट फॉर द आइडिया ऑफ सर्वजनम हिताय सर्वजनम सुखाय, दैट इज वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। बढ़िया।
अच्छे आंसर लिखे हैं आप लोगों ने, मेरे को एक बार शेयर भी कर देना, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है, दोनों ही शेयर कर देना मुझे एक बार। तो इसको थोड़ा देखते हैं आंसर को एक बार फटाफट, क्या है इन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का कोर डिमांड था, है ना, वो क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर, इंटेलिजेंस में नॉट बी सिंगुलरली एसोसिएटेड with emotions or intelligence. It also include a broad range of personality characteristic, ठीक है, that might predict success in professional and everyday life. तो दो पार्ट में इसके बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लास्ट में दो पॉइंट मतलब बनाऊंगा इसके, ठीक है। एक उससे पहले कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया उसने कि भाई उसमें करना है, प्रेडिक्ट करना है। एंड उससे पहले उसने बोला है इमोशनल इंटेलिजेंस मे नॉट बी सिंगुलरली रिलेटेड विद इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। मतलब अगर मैं बात करूं तो ईआई इज नॉट इक्वल टू ओनली इमोशनल स्किल्स पे बात कर रहा है वो, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ईआई इज नॉट इक्वल टू ओनली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की बात कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि भाई ईआई इंक्लूड्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात बोल रहा है। ये तीन सर्कमस्टांसेस निकल के आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ट्रेट्स आए हैं बन के, ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे सक्सेस इन गवर्नेंस एंड डेली इंटरेक्शंस करने में, ठीक है। तो स्टार्ट किया कॉलमैन से, इंट्रोडक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस डिफाइंड बाय द कॉलमैन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज चैनल इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली। फिर however AI is not confined to emotional sensitivity और cognitive intelligence alone, ये लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर modern behavioral psychology views AI is a broad personality framework that integrates emotional regulation, ethical disposition, interpersonal skills, resilience and adaptability, ठीक है। लास्ट में AI shapes holistic human functioning in both professional and everyday life। अब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी सिस्टम का एक बनाया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशंस, एथिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और स्किल्स, जिसको चारों कोई चीजों को टैकल करने का ट्राई किया है। इमोशंस में एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस, एथिक्स में इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स में रिसाइलेंस, एडेप्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, एंड देन स्किल्स में लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्सुएशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो नॉन कोर पार्ट को था उसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कैसे, एआई इज नॉट लिमिटेड टू इमोशंस और आईक्यू, आईक्यू मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया है, बट एआई इज नॉट लिमिटेड टू इमोशंस। वो कैसे, ट्रेडिशनल मेजर्स सच एज आईक्यू एक्सेसेस एनालिटिक एबिलिटीज व्हाइल इमोशन रिफ्लेक्ट एक्टिव स्टेट्स, affective states. AI goes beyond both by linking how people think, how they feel, and how they believe in real world situations. जिससे क्या बना, cognition, emotion, personality, making a comprehensive predictor of success. ये तीन वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द AI is not limited to emotions और IQ। तो उसके बियॉन्ड हम जाके थोड़ा सा बात कर सकते हैं उसमें। देन AI is a broad personality construct, जो लास्ट वाला पार्ट था पहले उसको देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें रिकग्नाइज वंस इमोशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस की बात करेंगे। एग्जांपल, सिविल सर्वेंट अवेयर ऑफ द पर्सनल बायसेस, अवॉइड्स अनफेयर डिसीजंस इन द वेलफेयर स्कीम्स। अब मैंने नाम इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं जनरली बोलता हूँ कि आप ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिखो, क्योंकि मैं जनरली एक स्कीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों के पास में कोई डेप्थ में नाम और कोई एक स्कीम मेंशन करना हो, जैसे मनरेगा के लिए किया था लोगों ने, है ना, तो या फिर टीन नाभी का जो एग्जांपल दिया, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो विद देम। empathy and compassion, understanding others feelings and perspective, Kerala compassionate policing module, improved police public trust, ठीक है। ये वाले जो कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सबसे यूनिक रहेगा आप लोगों के आंसर्स में, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड एथिकल ग्राउंडिंग, इमोशनल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, फेयरनेस प्रिवेंट्स मैनिपुलेटिव बिहेवियर, ऑफिसर रेसिस्टिंग प्रेशर ड्यूरिंग इलेक्शंस शो एथिकल एआई, ठीक है। Resilience, stress tolerance, ability to stay composed during crises, like district administration displaying resilience during the 23 Himachal floods. Adaptability and flexibility, readiness to adjust new context, technology and social expectations. Officers using digital grievances system during COVID-19. Optimism and self-motivation, inspire others, like motivation leadership, like a special district program 2.0. Social skills and cooperation, ability to negotiate, pursue, listen and build relationships.
जिसमें स्वच्छ भारत डिपेंड ऑन द ऑफिसर्स कम्युनिटी मोबिलाइजेशन स्किल्स। ठीक है, अब हाउ दीज ट्रेड्स प्रिडिक्ट सक्सेस। पहला, प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूव टीम कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ethical decision making in dilemmas, enhance leadership in public interest, citizen centric governance को मजबूत करेंगे, reduces burnout and improve productivity in everyday, builds healthy relationship, enhances emotional stability, increase tolerance, patience and mental well-being, then effective communication and problem solving। ये डेली लाइफ में करना पड़ेगा। देन कंक्लूजन में, EI is a multi-dimensional attribute. It blends emotional sensitivity, ethical values and personality traits। यहाँ पर एक लाइन मैंने मेंशन किया, EI becomes a powerful predictor of success in professional everyday life, जो क्वेश्चन का ही पार्ट था। उसको कैसे किया यहाँ पर, लाइक interpret situation, individual interpret situation, respond to stress, interact with others, uphold moral principles। ये 3 पॉइंट यूज करोगे आप इसमें, रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, इंटरेक्ट विद अदर्स, अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स। उसके साथ में हम लोग इसका लाइक प्रोफेशनल एवरीडे लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। देन अब यहाँ पर एक बच्चे ने ये स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में, इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू एक्ट इंटेलिजेंटली। अमरसन का एक था कोटेशन, उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद उसने पॉइंट मेंशन करा था। ठीक है, एक ने स्टार्ट किया था यहाँ पर कुछ इस टाइप का, मुझे तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया था, have been masters of art। ये लाइन तो ठीक है, masters of mind have been masters of art, लेकिन मुझे थोड़ा सा कनेक्शन का डिस्कनेक्ट लग रहा था यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइक मेयर्स का एक मेंशन किया है ऑलरेडी, आई थिंक कुछ नोट्स में भी मेंशन कर रखा होगा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड कंपैशन, जीज फॉर कीवर्ड्स दे हैव यूज्ड। फिर गोलमैन का इन्होंने स्टार्ट किया, एक डायग्राम देखो ये वाला। अब इन्होंने क्या किया, इसको अप एंड डाउन करके जो दिखा रहे हैं। ठीक है, 1 में सोशल स्किल, फिर सेकंड में इन्होंने सोशल रेगुलेशन दिखाया है, थर्ड में सेल्फ रेगुलेशन, और फिर इसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो इस टाइप का डायग्राम भी बना के आप ऐसा यूज कर सकते हो। ठीक है, या वेन डायग्राम में EI और EQ, IQ इज इक्वल टू EI, इमोशनल क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज इक्वल टू इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक डायग्राम ऐसा भी आप बना सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने मेंशन किया है, कैन यूज EI टू मैनिपुलेट, जिन्नाज कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, can affect personal relation toxicity, gaslight person to using emotions। फिर उन्होंने उसके 4 वर्ड्स वही वाले अगेन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट का पार्ट दिया है गोल्डमैन का बता के। ठीक है, एक ये बनाया ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द लॉ, सब्जेक्टिविटी ऑफ द इमोशंस, बीच में EI इक्विवेलेंट कर रहा है इनको। ठीक है, द ओल्ड disabled lady not having ration card could be given benefit along with Chetan Rathod, IPS sing national anthem। तो उसने क्या किया, ड्यूरिंग क्राउड एंड पब्लिक प्रोटेस्ट इन ऑफ NARC और CAG उसमें किया इन्होंने, that led to effective crowd management where EI was used for professional goals। ये तेजस्वी का एक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कुछ लाइक डिस्टिलरीज मैनेजिंग हुज डिस्टिलरीज एंड आरिफ शेख, एक आमचो पुलिस, आमचो बस्तर। ठीक है, यूज EI टू टच सेंटिमेंट्स ऑफ पब्लिक कमिंग क्राइम्स। देखिए स्टार्ट किया, किसी ने ऐसे लिखा है उसको, एडम ग्रांट का लिखे। ठीक है, अब एक ने बनाया हार्ट एंड हेड, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो ये वाला पार्ट है, ये दिखाया है इसने। तो ये भी एक बना सकते हैं, कनेक्ट कर रहा है ये भी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस इक्वल टू इमोशनल प्लस में इंटेलिजेंस, उन्होंने किया नॉलेज ऑफ द अदर सर्कमस्टांसेस, डिसीजंस और कंपैशन। EI इज नॉट इक्वल टू E plus I ओनली बट मच मोर। देन ये वाला एक मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा था, टेकिंग from Indian scriptures, monolithy EI always is preferred over the ये क्या वर्ड लिखा है, किसी को समझ में आ रहा है? बुद्धिवृत्ति। हाँ ठीक है, तो ये IQ के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस टाइप के हिंदी वर्ड कुछ यूज करो, क्योंकि ये मेधानंद ने काफी सारे वर्ड्स यूज किए थे हिंदी के लिए। ठीक है, अब किसी ने महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दिया, कैप्टन कूल। ठीक है, EI कैन बी जनरेटेड यूजिंग लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ लीडर्स, बेटर कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग ऑन द फील्ड, पर्सनल इंटरसेप्शन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। अब इसका एक थोड़ा देखते हैं आंसर में कि हम लोग क्या इसमें और बेटर कर सकते हैं।
क्या बना सकते हैं इसका, बताओ कुछ, किसी को कुछ अगर आ रहा हो तो। इसमें हम लोग मेंशन करेंगे सी रेज शो, जो भी पॉइंट्स है सारे आ जाएंगे इसमें, सी रेज शो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा, कैसे इसको लिखेंगे भाई। सी रेज शो, एस फॉर सेल्फ अवेयरनेस, बेसिक है ये बिल्कुल। ठीक है, ई फॉर एम्पथी एंड कंपैशन। ठीक है, अब सेल्फ अवेयरनेस में क्या पार्ट आ गया हमारे, कैसे इमोशंस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, वीकनेस की बात करते हैं, सेल्फ वाला। ठीक है, इसके साथ में ही मैं अवॉइड करूंगा लाइक बायस्ड डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करते हैं हम लोग सेल्फ अवेयरनेस में। फिर ई फॉर एम्पैथी एंड कंपैशन की बात की मैंने, तो अदर्स फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और मैंने एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था केरला वाला आप लोगों को, इसमें केरला कंपनसेट पुलिसिंग का 2024 में, वो एक एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, फिर ए फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या एग्जांपल लिखेंगे, जिसमें हम लोगों ने लाइक टेक्नोलॉजीज और सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात की थी। ठीक है, न्यू कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, तो इस टाइप का आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर मैंने इसमें डिजिटल ग्रीवेंसेस की बात की थी कोविड-19 के टाइम पे, डिजिटल ग्रीवेंसेस कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है, तो मेरा सी कंप्लीट हो गया। फिर आता है मेरा रेज, आर फॉर रीसाइलेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हिमाचल फ्लड वाले की बात की 2023 में, भैया किसी आप उसका मेंशन कर सकते हो ब्यूरोक्रेट का इसमें। ठीक है, ए फॉर रेज में इंटीग्रिटी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एथिकल ग्राउंडिंग। इसमें होनेस्टी, फेयरनेस, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएंगे, ऑनेस्टी, फेयरनेस, और इसमें एथिकल कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो वो वाला एक पार्ट मेंशन किया था मैंने, एथिकल कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। ये सभी आपके जो इसमें पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, देन आई फॉर इंटरनल मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है, जिसमें हम लोग करते हैं इसमें टीम इंस्पायर टीम, इंस्पायर टीम, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2.0 जो मैंने बताया। ठीक है, फिर एस फॉर सोशल स्किल एंड कॉर्पोरेशन, उसमें स्वच्छ भारत मिशन का बताया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, स्वच्छ भारत मिशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। देन लास्ट ई फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें रिड्यूसेस बर्नआउट को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने जम्मू में वो स्टार्ट किया था। ठीक है, या फिर प्रोडक्टिव ट्रस्ट को करने के लिए ये पॉइंट है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब आ गया लास्ट में, जिसमें हम लोग वो दो पार्ट हमने मेंशन किए थे, प्रोफेशनल लाइफ वाला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका सो लिखा था मैंने लास्ट में, सक्सेस का एस आएगा, सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें बेटर कोऑर्डिनेशन की बात की थी हम लोगों ने, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात की। ठीक है, या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात की, या फिर लीडरशिप की बात की यहाँ पर। ये था मेरा एस वाला, जिसमें स्किल सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा था। अब मेरा ओ आ गया, ओ में ओवरऑल वेलबींग, मतलब हम लोग डेली लाइफ की बात करेंगे, एवरीडे लाइफ की बात करेंगे, ओवरऑल वेलबींग इन पर्सनल या इन एवरीडे लाइफ। ठीक है,
ये मेंशन करेंगे जिसमें हम बोल रहे बेटर रिलेशनशिप, पेशेंस एंड टॉलरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेली लाइफ। ठीक है, ये एक इसका आंसर बनने के चांसेस थे भाई। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट। हाँ, सर रेज में ए क्या था? आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अडेप्टेबिलिटी वाला होगा ना उसका, ए। रेज The में ए anchored अडेप्ट integrity. नहीं, एंकर्ड 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 इन इंटीग्रिटी, एंकर्ड इंटीग्रिटी, जिसमें हम अच्छा लोग एथिकल ग्राउंडिंग की, ऑनेस्टी की और फेयरनेस की बात करते हैं, जिसमें इलेक्शन वाले इलेक्शन की बात की थी शायद, जिसमें एथिकल कंडक्ट इन इलेक्शंस की बात कर रखी थी। ठीक है, चलो भैया, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफी इसमें मैंने एग्जांपल भर भर के लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेवन 37 डिस्कशन करूंगा।
Then yes, Naz. गुड मॉर्निंग सर। मैंने फियर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। Fear is an emotional reaction to perceived danger which acts as a survival mechanism if managed properly. फिर उसके बाद मैंने एक फ्लो चार्ट देने ट्राई किया है जहाँ पे डेंजर इट लीड्स टू फियर if acted emotionally, if acted intelligently, it leads to shield from consequences and gives good results. Next is next heading is utility of fear. Points are caution and preparedness. Example, before exam every student studies well to get good marks. Next is encourages for better action. Like in during COVID-19 everyone had fear of being fell to COVID-19. Next is it protects protective in nature. It ensures physical safety. Just like while driving vehicles, everyone ensures safety in driving safe lane. Next is ensures discipline such as integrity, honesty, and next is moral fear. Reinforces good behavior. Example, fear of taking bribe or corruption and action against an employee. Next heading is management of fear. How can we manage fear? Through first is mindfulness and meditation. Next is critical thinking and scientific temper, emotional intelligence and self-awareness, controlling behavior and managing your reactions. And conclusion is fear is a double-edged sword which can inculcate discipline but can also lead lead to suppression and loss of creativity. ठीक है, ठीक है। और आपने कोई ऐसे मतलब इसमें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल कोई ऐसा आपने कोई ऐसा एग्जांपल दिया है इसके अंदर? और सर ठीक है, मतलब मतलब यही दिया था COVID-19 एग्जाम ड्राइविंग वगैरह, मतलब कोविड-19 का जहाँ है ना? हाँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभी क्या लिखा आपने? गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने पहले थोड़ा सा फियर को डिफाइन करने की कोशिश की है और फिर क्वेश्चन के मतलब डिमांड को उस सेंस में मोल्ड करने की कोशिश की है। Fear is an emotional response that an individual shows in cases of threat and danger, often considered as a negative emotion. Fear has its own utility to avoid crisis in daily life. फिर से हेडिंग दी है यूटिलिटी ऑफ फियर इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प मेंटेन कॉशन, हेल्पिंग टू मेंटेन एथिकल नॉर्म्स। सर इसमें एग्जांपल थोड़ा सा मतलब वैसा है बट अभी मुझे इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। इसमें एग्जांपल मैंने डाला है मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेफ्टी बाय एनडीएमए टू अवॉइड कोलैप्स एंड ऑल। फिर फोकस ऑन जस्ट एंड एफिशिएंट आउटकम, फियर हेल्प्स इन मेकिंग राइटियस डिसीजंस। एग्जांपल जुडिशियल जजमेंट्स। उसके बाद सर बिल्ड्स थॉट प्रोसेस, फियर एक्टिवेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एग्जांपल थॉमस हॉब्स जो इंग्लिश फिलोसफर है, born in English during English Civil War, promotes individual liberties because he was born in a tough time. उसके बाद fosters social responsibility, maintaining healthy relationship, fear of losing one's grandparents, fosters love and respect towards them. सर इंश्योरिंग फेयरनेस, सर इसमें मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है। इसके बाद हाउ कैन फियर बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। सबसे पहला पॉइंट लिखा है एक्नॉलेजमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग द रैशनैलिटी बिहाइंड द फियर बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। इसके बाद सेकंड है कम्युनिकेशन, शेयर योर फियर विथ योर क्लोज वंस। एग्जांपल चाइल्ड शेयरिंग हिज फियर्स विथ हिज मदर। Faith in oneself through SWOT analysis, knowing one's abilities to overcome challenges. Experiential learning, thinking of past experiences where one has overcome fear. Role models, learning from our leaders and role models how to handle crisis management. Example में सर गौतम गंभीर का एग्जाम्पल दिया है वर्ल्ड कप के टाइम पे जो उन्होंने प्रेस एड्रेस की थी। फिर सर कंक्लूजन में लिखा है however though fear has
some utility, it needs to be replaced by courage, as fear drains one's confidence, but courage helps oneself to achieve higher ends. बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो भाई एक बार इसका देखते हैं। नेक्स्ट में प्रियांशु से पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का क्या डिमांड था। फियर इज अ पावरफुल प्रिमिटिव अनडिजायरेबल इमोशंस, बट लाइक ऑल अदर इमोशंस इट हैज इट्स यूटिलिटी। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ हाउ कैन फियर बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था योर लाइफ से। ठीक है, अब फियर इज एन इंस्ट्रक्टिव इमोशन रूटिंग इन ह्यूमन इवोल्यूशन। एक लाइन तो आप ये अच्छी चेप सकते हो पूरा डायरेक्टली उसको। While often viewed as undesirable, fear has survival value. It alerts individual to threats, cultivates caution, motivates preparation. Ethical terms की बात करेंगे तो fear shapes prudence, self-regulation and responsible decision making. ठीक है, इसके बाद भी उसको थोड़ा सा और भी अच्छे से बनाने की, it becomes a force of discipline, growth when unmanaged. ये उसको एक्सप्लेन वे में बताया गया है, लेकिन अगर आप एथिकल टर्म्स में देखोगे तो fear shapes prudence, self-regulation, responsible decision making. अब आता है मेन पार्ट इसका, यूटिलिटी ऑफ फियर। सबसे पहले एग्जांपल दिया, फियर एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। कैसे? फियर एक्टिवेट्स बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अलाउइंग क्विक असेसमेंट ऑफ डेंजर। जैसे ड्यूरिंग अ लेट नाइट बाइक राइड आई once slowed down after noticing stray dogs. My cautious behavior prevented a potential accident. ठीक है, जर्नल मतलब रियल लाइफ एग्जांपल है ये। ठीक है, फियर एनहांसेस सेल्फ डिसिप्लिन, फियर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉस्टर्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। माय फियर ऑफ फेलिंग अ सेमेस्टर एग्जाम पुश्ड मी टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड स्टडी रूटीन। ठीक है, फियर प्रमोट्स एथिकल कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप फियर ऑफ गिल्ट, शेम और मोरल ट्रांसग्रेशन स्ट्रेंथ्स इंटीग्रिटी, जिसमें while submitting an assignment the fear of plagiarism prevented me from copying content and encouraged original work. ठीक है, इसमें रियल लाइफ वाला फील आ रहा है आप लोगों को इन एग्जांपल्स में? आप लोगों ने भी की होंगे सब चीजें। ठीक है, फियर इंक्रीजेस प्रिपेयर्डनेस रिस्क असेसमेंट। ठीक है, जिसमें evaluate worst case scenarios and plan accordingly. Like fear of missing deadlines made me start UPSC answer writing practices early, reducing anxiety fear later. कर रहे हो इसको रिलेट अपने आप से? Fear fuels personal growth. ठीक है, confronting fear often leads to expansion of comfort zones. जिसमें despite my fear of public speaking, I joined mock debates which gradually built confidence. ये था मेरा यूटिलिटी ऑफ फियर। देन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग फियर, कैसे मैनेज करेंगे उसको? रेशनल एनालिसिस एंड कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, जिसमें क्या कर सकते हैं? रिप्लेसिंग इरेशनल थॉट्स विद रियलिस्टिक असेसमेंट्स। एग्जांपल देंगे तो बिफोर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन आई रिप्लेस थॉट्स लाइक आई विल फेल विद आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, रिड्यूसिंग एंजाइटी। दोनों चलते हैं चीजें। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो पेपर देखते ही सोचते होंगे ना कि एक बार में पास हो जाएंगे या फेल होंगे, पेपर देखने के बाद में पता लगता है। तो वैसे वाला कि आई विल फेल विद आई हैव प्रिपेयर्ड वेल। एक्सपोजर एंड ग्रेजुअल desensitization, facing fear in small manageable steps. To overcome my fear of swimming, I started by practicing a shallow water before moving deeper. Emotional regulation skills, technique like mindfulness, deep breathing, self-awareness. Before UPSC test, practicing 5 minutes of deep breathing helped me stay calm. Seeking guidance and social support, mentors and peers provide reassurance and modeling. Speaking to a senior who had cleared UPSC helped me manage fear of the failure. Value orientation and ethical clarity. Fear reduces when actions align with inner values. Like when volunteering during floods, my fear reduced because I believed helping others was morally right. Building competences through patience, through practice, skill mastery reduces uncertainty and related fear. Consistent sincere practice reduces my fear of aptitude sections. फिर एक छोटा सा एक बनाने की कोशिश की है यहाँ पर कि फियर जाएगा रिफ्लेक्शन और वो करेगा राइट एक्शन। ठीक है, या फिर
फियर यूटिलिटी मैनेजमेंट साइकिल, फियर ट्रिगर, इमोशनल, अरोसल, देन फिर इससे क्या है यूटिलिटी। यूटिलिटी में सर्वाइवल सिग्नल, एथिकल रिस्ट्रेंट, मोटिवेशन, देन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रिफ्रेमिंग, एक्सपोजर, एथिक्स। इसके बाद में कंट्रोल रिस्पॉन्स एंड देन पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन में फियर थ्रू अनकंफर्टेबल it not an adversary, it's a teacher, it is a teacher, a protector and an ethical guide. When channeled wisely through emotional intelligence and conscious regulation, fear becomes a catalyst for responsible behavior, resilience and moral strength. छोटा सा कंक्लूजन है, ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक बच्चे की कॉपी है इसमें। एक ने स्टार्ट किया, फियर इज लाइक वन इज नॉट वाइज हु फियर्स फ्रॉम हिज लाइफ, सॉक्रेट्स का इन्होंने मेंशन किया है। देन फियर कैन ऑफन स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस इन वन लाइफ ड्यू टू फियर ऑफ फेलिंग, fear of well ये regulated, then fear of being wrong। थ्री कीवर्ड्स के साथ में उन्होंने मेंशन किया। देन दे हैव गिवन द यूटिलिटी, फर्स्ट इज सेफ्टी, सोशल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ। लाइक सेफ्टी में फियर ऑफ फायर, सोशल ऑर्डर में फियर ऑफ बीइंग क्या लिखा है स्ट्रेंथ, फिर नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल। फिर रूल ऑफ लॉ में फियर ऑफ लॉ, जैसे पनिशमेंट वगैरह का, इंजरिंग ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट। एक एथिकल बिहेवियर, फियर ऑफ गिल्ट बिफोर स्टीलिंग। इन माय लाइफ फियर एज नेगेटिव एंड फियर एज पॉजिटिव, दो तरह के उन्होंने फियर को मेंशन किया है यहाँ पर। आई डिड नॉट परस्यू माय ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ राइटर और एक्टर ड्यू फियर ऑफ फेलियर which to later regretted। ठीक है, fear as positive, fear of my mother's scolding prevented me from stealing money from her purse to buy a movie ticket। then fear management में dealing with your feeling, use of emotional intelligence। then एक phase wise step by step rational process to step out to comfort zone, यहाँ पर उसके मैगजीन का बात किया है। then they have given a little mind, courage of conviction is necessary for the breaking cycles of fear, reaching full potential। तो मुझे लगता है कि आप बेसिक वाला ही बना के रखोगे तो चलेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट अच्छे थे, जैसे ये इन्होंने ये वाला पॉइंट अच्छे मेंशन किया है, देखिए ये वाला पॉइंट अच्छा मेंशन किया था। और साथ में एक मुझे ये पॉजिटिव नेगेटिव में भी ठीक लगा, लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पल ज्यादा डालने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका एज सच तो कोई मतलब शॉर्ट में नहीं है, उसको मैं शॉर्ट में नहीं बोलूंगा, बस इन्हीं वर्ड्स को ही फ्रेम करके कुछ, जैसे यूटिलिटी ऑफ द फियर आ गया है, तो उसको वर्ड के थ्रू अगर इन्होंने मेंशन करने का कोशिश किया है तो उसमें REESVC करके एक बनाया है, रिफ्रेम वर्ड करके इसका। ठीक है, इसका सॉरी मैनेजिंग उसका एक ये बनाया है, और एक यूटिलिटी में FDEPG बनाया है इसका। तो ये मतलब इतना नॉर्मली है, इसमें कोई लाइन नहीं बन रही थी यहाँ पर, तो इसलिए इसको स्किप करेंगे, ये हमारे बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू ही जाएगा। एग्जांपल्स इसमें वो यूज कर रहे हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, इसमें क्वेश्चन में रियल लाइफ एग्जांपल पूछे हैं, तो आप अपने ऑन बेस्ड एग्जांपल दो। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैंने आधे से ज्यादा एग्जांपल यूपीएससी जर्नी पे ही लगा दिया। ठीक है, तो वैसे वाले एग्जांपल्स मेंशन करोगे, जैसे एक यहाँ पर आई विल फेल, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, इस तरह के एग्जांपल्स आपको यूज करने हैं। किसी ने ऐसे एग्जांपल यूज किए यहाँ पर? Yes, sir. क्या एग्जांपल यूज किया सर? सर मैंने वो मेरे कॉलेज में जब डिबेट कंपटीशन था, तो उसमें मैंने वेल प्रिपेयर्ड होके मैं गई थी, जबकि मुझे बहुत फेयर था पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस और वो सब इम्प्रूव हो गया, ये वाला। सर मेरा एक और ठीक है। डाउट था, मुझे एक चीज पूछना था सर। एक वो मैंने किताब पढ़ी थी 10x रूल, तो उसमें उन्होंने फियर पे लिखा था, तो उसको मेंशन कर सकते हैं ना, फियर इज द ग्रेट इंडिकेटर एज मेंशन इन 10x रूल बाय ग्रैंट कैडॉन। हाँ ठीक है, ओके सर। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बुक का नेम भी मेंशन कर ओके सकते सर। हो। ठीक है, तो भाई अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। It is an emotional intelligence and not intelligence question, which has become essential for living a peaceful, happy and prosperous life। Examine इसको करेंगे, ये एक्यूरेट टाइम में करना है। ठीक है, एक पे स्टार्ट करेंगे इसका।
यस डन। प्रियांशु बताओ क्या लिखा आपने। सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्ट किया हूँ। IQ is about logical reasoning ability, reasoning abilities, analytical skill, language skill, etc. Whereas EQ is about identifying, understanding, and managing our own emotions. फिर मैंने why EQ leads to happy and peaceful life, because first point दिया handle the internal emotion like fear, anxiety, etc. Example, PM Modi handled emotion at the time of his mother's death. Mm, Second, adaptation to change, learning to live like learning at the situation demanded. Example, yeah, Ajit Dovar live in Pakistan during a mission. Mm, Empathy with others. Example दिया है Kawal Tanuj handled the problem of untouchability with emotional intelligence, not with rational rational emotion. Motivation beyond duty. Motivate to contribute for society. Example दिया है Armstrong Palme built 100 kilometer road with public funding. सब इतना ही लिख पाया। इसको दोबारा से रिफॉर्म करना है क्वेश्चन को, ठीक है, और लिखोगे इसको क्वेश्चन को दोबारा से भी। इसमें अप टू द मार्क वाला रिमार्क नहीं है। एनी यस स्वागता।
हाँ, मैंने स्टार्ट किया था while IQ reflects how we think, emotional intelligence reflect how we live, and then the point why emotional intelligence is essential for peaceful and healthy life, and then उसके अंदर 4 पॉइंट मैंने मेंशन किया है. Inner stability, AI helps individuals recognize emotional triggers, reduce impulsive reactions. As an example मैंने इसमें मिशन कर्मयोगी को मेंशन किया है, ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स. Second point was strengthening relationships. AI improves empathy, communications and conflict resolution while leads to healthy relationship. इसमें मैंने आईएस आरुष आईएस पामा का एक एग्जांपल है पीपल्स रोड पे, वो वाला एग्जांपल्स मैंने कोट किया है. And the third point was mental well-being, managing anxiety, anger for leaders to emotional balance and reduce burnout. इसमें मैंने कोविड-19 के ड्यूरिंग कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोल्स को मेंशन किया है. And the fourth point was the balanced decision making. AI helps individuals consider two human dimension and decisions, create fairness and compassion. And lastly, the conclusion part was social introduction in world emotional intelligence, not merely cognitive intelligence, determine the equality to one's relationship, ethical judgment, and personal well-being. That's it, sir. प्राचिता, आपने कुछ लिखा है इस पे? प्राचिता, सर जेनरिक आंसर है, कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वोशंट को शुरू में डिफाइन किया है. देन आई हैव मेड अ डायग्राम डिफरेंशिएटिंग द टू. मैंने फर्स्ट हाफ में आईक्यू और ईक्यू के डिफरेंसेस लिस्ट डाउन करे हैं. एंड देन आई हैव रिटन द फिर सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में आई हैव रिटन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें सर वही सेम पॉइंट्स की सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमिज्म. सो मतलब जेनरिक आंसर था, बहुत ठीक कुछ है, अलग नहीं था. यस ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि डिफरेंस ही देना था. इट्स अ इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट अ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, which has become essential for living a peaceful, happy and prosperous life. एग्जामिन, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में, while intelligence question IQ represents analytical logical abilities. IQ क्या करता है? एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है. बट इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली. ये क्या करता है? EI, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस. ठीक है. थ्री कीवर्ड्स दोनों के लिए हम लोगों ने यूज कर दिए. In the contemporary world marked by stress, interdependence, and complex social interactions, EI has emerged as a more critical determinant of well-being, harmonious relationship, and long-term success. IQ may help one achieve efficiency, but emotional intelligence enables individuals to live peacefully, happily, and prosperly. तो ये क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ ये 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है फॉर द इंट्रोडक्शन. ठीक है. देन व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स मोर देन IQ टुडे. ठीक है. इसमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर स्टेबिलिटी. ठीक है. जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कल्टिवेट्स सेल्फ अवेयरनेस, एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज इमोशनल ट्रिगर्स, रिड्यूस इंपल्सिव बिहेवियर एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम. यहाँ पर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस हेल्प्स रिड्यूस एंजाइटी ड्यूरिंग फेलियर एंड क्रिटिसिज्म, प्रमोटिंग काम डिसीजन मेकिंग. ये काम का वैसे यहाँ पर आपका प्रमोटिंग काम डिसीजन मेकिंग. ठीक है. सेकेंड पार्ट बिल्ड्स हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहां पर एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, सोशल सेंसिटिविटी की बात करेंगे, जिसमें आपका essential for the family harmony, workplace cooperation, community trust. Like a team leader resolving conflict by understanding team members' insecurities, something IQ alone cannot achieve. IQ अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ में ये एक हेल्प करेगा. Enables conflict resolution and emotional regulation, जिसमें manage anger, fear and frustration through emotional regulation and cognitive reframing. ठीक है. तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट फेसिंग पब्लिक ट्रस्ट यूजिंग पेशेंस, डायलॉग एंड क्वेश्चन. अभी मैंने एक पुलिस वाले का दिया था पीछे, एक एग्जांपल, एक आंसर दिया था पुलिस का, कि उसने जनगण मन स्टार्ट किया था वहां पर सीए प्रोटेस्ट में.
तो वैसे वाला ये कुछ एग्जांपल की भाई आप उसमें पेशेंस देने के लिए, या फिर अभी राजस्थान का एग्जांपल दे सकते हो, वहां पर भी हुआ है। सपोर्ट्स एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जिसमें कंपैशन, फेयरनेस, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैनेज करेंगे। ऑफिसर प्रायोरिटाइजिंग रिलीफ फॉर vulnerable ग्रुप्स ड्यूरिंग फ्लड्स डेमोन्स्ट्रेट्स एम्पैथी ड्राइवन लीडरशिप। इसका माइक खुला हुआ है, इसको थोड़ा म्यूट करो। ठीक है, तो इसके बाद में प्रमोट्स resilience एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहां पर enabling individuals to adopt adversity without emotional breakdown. Like students with EI bounce back from exam failures faster than those relying only on the cognitive skills. Ensures workplace efficiency and social harmony. जिसमें collaboration, persuasion, team cohesion. High EI managers create trust-based environments, improving productivity and reducing attrition. तो जर्नलिक थोड़ा सा इसका आंसर ही जर्नल टाइप का बनेगा, कुछ ऐसा मतलब कोई हाइपोथेटिकल आंसर नहीं बनेगा, जर्नल टाइप का आंसर बनाना पड़ेगा इसमें। why why IQ alone is insufficient, जिसमें IQ lacks the ability to handle emotional pressure। ठीक है, यहाँ पर हाई IQ इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल विद टीम वर्क और लीडरशिप इफ दे लैक एम्पैथी। एक कॉग्निटिव डोमेन्स का मेंशन किया है, जिसमें बिहेवियरल, मोरल, सोशल फिटनेस की बात की है। पीपल विद हाई IQ बट पुअर EI ऑफन एक्सपीरियंस स्ट्रेन रिलेशनशिप, बर्नआउट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों का एक रिलेशन है यहाँ पर। फिर हाउ EI प्रमोट्स पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पर पीस में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटीज क्रिएट इनर एंड सोशल पीस। हैप्पीनेस में आपका EI फोस्टर्स ग्रेटिट्यूड, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, फ्रीडम फॉर नेगेटिव इमोशंस। देन प्रॉस्पेरिटी में तीनों का एक एक मेंशन करके जो क्वेश्चन में दिया रखा था, वहां से EI ड्राइव्स टीम वर्क, मोटिवेशन, परसेवरेंस, एथिकल लीडरशिप, ये मेंशन किया। फिर एक EI का एक डायग्राम बना दिया यहाँ पर, पीसफुल लाइफ, सेल्फ अवेयरनेस, हैप्पीनेस, एम्पैथी, प्रॉस्पेरिटी, रिसिलियंस एंड एथिक्स। देन कंक्लूड द आंसर। इसमें सक्सेस इंक्रीज डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन इंटरेक्शंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एथिकल सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर एक मेंशन किया है, एक बाद में फिर उन्होंने EI डिटरमाइंस हाउ पीसफुली, जॉयफुली एंड रिस्पांसिबल इंडिविजुअल्स वॉक थ्रू देम, एक एक करके, और इसको फिनिश कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जनरल टाइप का ही बनेगा, इसमें कोई ऐसा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मिक्स मैच ऑफ IQ एंड EQ, IQ एंड EI का जो मेंशन कर रखा है, वो थोड़ा मिक्स मैच बनेगा इसमें। तो बेसिक टर्म्स जो आप लोगों ने यूज किए थे, जैसे मैंने इसमें बताया यहाँ पर, ये 3 वर्ड में, आप इनके थ्रू भी पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश किया, तो अलग से पॉइंट है, आप इनको रीड करोगे तो आप लोगों को बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, तो एक सर हमारे इस पास में क्वेश्चन बेसिकली ये वाला एक फ्रेमवर्क रहेगा। हाँ, सर मुझे बस ये पूछना था, इस क्वेश्चन में मतलब इफेक्टिवली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो मतलब हम सिर्फ कोर हाँ, डिमांड ऑफ द एक क्वेश्चन में ज्यादा पॉइंट्स लिख दे, वो अप्रोच बेटर होगी। वो बेटर है, ठीक है, उसमें भी काम हो जाएगा। देखो, अगर अगर आप लोगों को लग रहा है, अगर कुछ बच्चा क्या करेगा यहाँ पर, और EI को डिफरेंशिएट भी करेगा। सर मैंने डिफरेंशिएट करा, बट ठीक है, मुझे इसलिए लिखते तो समय लगा मुझे कि वो लगता है, रेलेवेंट नहीं था। मतलब IQ EQ का डिफरेंस तो एज सच क्वेश्चन उसको में मतलब पूछा नहीं था। लिखने का नीड नहीं है, लिखने का नीड नहीं है, बच्चा उसको वैसे ही जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि उसमें टॉपर कॉपी मेरे को नहीं मिला इसका, क्योंकि उन लोगों ने इसको इतना इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा था। तो एक बेसिक जेनरिक आंसर निकाल रखा था, लेकिन मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, तो एक बार इसको देखेंगे, और कभी ऐसा क्वेश्चन आता है इन केस, तो उसको थोड़ा सा टैकल करने का कोशिश करेंगे इन्हीं थीम्स पे। एक ही हेडिंग से हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे पूरा। ओके सर। ठीक है, हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ, अंशुमन बताओ। हाँ सर जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पहले इंट्रो दिया, उसके बाद IQ में एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा दिया कि इट्स एकेडमिकली एक्सेप्टेड, क्वांटिफाइंग, इजी टू आइडेंटिफाई, और फिर नेगेटिव ऑफ IQ किया, फिर मैंने कुछ मतलब डिमांड एड्रेस की। तो ये अप्रोच सही रहेगी या सीधे डिमांड एड्रेस करो ये सब? ठीक है, डायग्राम ऊपर बना दिया। नहीं 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 नहीं, डायग्राम ठीक है, ऊपर बना दो, कोई इशू नहीं है, पहले एक बना दो डायग्राम में, फ्लो चार्ट बना दो, फिर इसका एड्रेस कर दो। ओके सर, सर। वन रिक्वेस्ट। सर, क्या आप मुझे मेरे आंसर के थोड़े फीडबैक शेयर कर सकते हो? अभी मैं देखूंगा एक बार उस पर, मैं फिर बताऊंगा आपको उस वक्त। आप ठीक है, सर, मेरे सारे आंसर आपको भेज दूं? आपने मुझे, हाँ भेज दो, फिर मैं एक बार आपका सेशन रख लूंगा, उसमें आपको डिस्कशन दे दूंगा।
ओके ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप अपना होमवर्क क्लियर रखोगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो मेजर मेजर थीम्स होती हैं उनको कवर किया जाए यहाँ पर, और उन्हीं पे क्वेश्चन बनाए जाए। तो लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। काफी बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी इन्हीं में वो कंटेंट आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन निकल के आए, कोई एक्स्ट्रा ब्रॉड क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा। कल का जो टॉपिक रहेगा वो कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आज मैं भी कुछ चीजों पे नोट डाउन और ये बनाऊंगा, कुछ करूंगा। तो उसके लिए हम लोग कल मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चन डेफिनेटली हम सेशन में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे कल, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में मिलेंगे अभी, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। काफी मतलब जो बच्चा रेगुलर आ रहा है वो तो रेगुलर आ ही रहा है, काफी अच्छा आप लोगों को इसका लाइक रिजल्ट मिलेगा बाद में, इतना मैं बोल सकता हूँ। क्या अगर आप 200 के करीब क्वेश्चन कवर करोगे मेरे साथ में इस जर्नी में, तो काफी अच्छा आप लोगों को मेंस में आपका एनरिचमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सर करेक्ट इसको, अरे तब हाँ। सर आपने मतलब पिछली या पिछले से उससे पहली वाली क्लास में बोला था कि आप स्कैन करके फ्लो चार्ट्स और वो सब कर देंगे, जो आपने हाथ से बनाए थे ना। आपने कुछ तो ग्रुप में भेज दिए थे। वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे, हाँ इंक्लूड कर रखे हैं इसमें कुछ तो, जो रहते होंगे उनको मैं स्कैन करा दूंगा, एक तो जैसे अभी करा दूंगा, स्कैन करा के दे दूंगा, ओके सर, थैंक यू। सर आप ठीक है। फोर्थ वाले ओके क्वेश्चन के लिए ओके शायद कुछ ओके। फ्रेमवर्क बता रहे थे। फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए फ्रेमवर्क नहीं, ओके हाँ तो मैंने जर्नल के लिए बोला कि जर्नली फ्रेमवर्क आएगा इसमें, ऐसा बोला हुआ। 4 चैप्टर मतलब कल जो चैप्टर करेंगे उसमें काफी चीजें हम लोग सीखने का मौका, देखिए इसमें बेसिक चीजें थी तो ये बेसिक ही रेफरेंस से जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में फिर से, ठीक है।